Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal here with Forensic Psychology, lecture number 2. And in the previous lecture, we introduced to you this new and exciting field. You might say, what's so exciting about forensic psychology? Well, I must admit to you that some of the psychologists consider forensic psychology not dull, but they do find it very, very difficult area to work in. Difficult क्यों? It involves the legal system. And the legal system, is a very difficult thing to talk about. It's a very difficult thing to discuss. It's a very difficult thing to get involved in. So yes, I must admit कि एक तरफ तो मैं इसे बड़ा new and exciting area कह रहा हूँ, दूसरी तरफ it's a very difficult area to work in. And when I say it's a difficult area to work in, मसलन अगर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को ऑप्शन दी जाती है कि जनाब आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी में चले जाएं या हेल्थ साइकोलॉजी में चले जाएं या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में चले जाएं, तो यू वुड फाइंड कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी इज नॉट यूजुअली द फर्स्ट चॉइस ऑफ द मेजॉरिटी. क्यों? तो उन्हें पता चलता है कि जनाब प्रिजनर्स के साथ काम करना पड़ेगा, जेल में जाके कैदियों के साथ, मुजरिमों के साथ काम करना पड़े, पुलिस के साथ काम करना पड़े, कोर्ट्स में जाके काम करना पड़ेगा. तो मोस्ट पीपल डोंट फील कि जी ये कोई बहुत ही एक्साइटिंग चीज है, बल्कि दे थिंक ऑफ इट इज वेरी डिफिकल्ट. बट व्हेन आई कॉल इट एक्साइटिंग, आई मीन इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. I mean it in the sense of creation of new knowledge. I mean it in the sense of application of psychology to an area where performance and things can be improved. In the last lecture I talked to you about the police. And yes, people might think that, I am being unduly harsh. But that's not the case. Police जो है वो job ही ऐसी है कि उसमें एक typical किस्म के problems पैदा होते हैं. Let me give you the example of United States. United States में जो इदारा सबसे ज्यादा करप्ट तस्वुर होता है वो पुलिस. ब्रिटेन में वो इदारा जिसमें सबसे ज्यादा वायलेशंस होती हैं पब्लिक सर्विस के किसी और इदारे की निस्बत, वो पुलिस. Why? It is the nature of the job. It is a very stressful job. It involves dealing with criminals day in and day out. तो जब मैं पुलिस के बदनाम होने की बात करता हूं तो खुदा न खास्ता मेरा ये मकसद हरगिज नहीं है कि मैं कहूं कि जनाब हमारी पुलिस कोई बहुत ही बुरी है. That's not the goal. The goal of my saying that police is unpopular because police by the nature of its very job is unpopular. And जहां तक बात है करप्शन की या अब्यूज की या टॉर्चर की, तो अब बात यह है कि करप्शन तो हमारी सोसाइटी में है, और सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, हर सोसाइटी में है. लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, वेरी ऑनेस्ट विद यू. आई हैव लिव्ड अब्रॉड, आई हैव लिव्ड इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज. So corruption is not, unlike what most people say, corruption is not just a Pakistani thing. I think it was invented abroad, frankly. तो corruption जो है वो अगर पुलिस में है तो वो that is again, जो सोसाइटी में है तो पुलिस में भी है, right? इसी तरह पुलिस अगर टॉर्चर करती है तो उसको वो भी आमतौर पे इसी वजह से होता है कि पुलिस इज इन फैक्ट dealing with criminals, and dealing with hardened criminals, they don't have access to the sophisticated psychological principles, concept or skills. And that is the reason why they have to resort, to violence. So there are lots of issues, and these are complicated issues. And that is why we are trying to apply psychology to this. And that is why I would still consider it very exciting, even though it involves working in prisons, even though it might involve going into thanas and kacheris. And you know how people avoid, these are places people avoid. Thana, court, kacheri are typically things you don't, have as the first choice in terms of your favorite visiting places. ठीक है ना? लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि गॉड फॉरबिड
वी हैव टू फेस दिस रियलिटी एटलीस्ट वंस इन आवर लाइफ टाइम, ठीक है ना, किसी न किसी वजह से ताल्लुक हो जाता है, और नहीं तो ट्रैफिक पुलिस से तो आपका राब्ता रहता ही है सड़कों के हवाले से। सो देयर आर एस्पेक्ट्स of the law that impact our lives, and that is where forensic psychology can be extremely useful. So just quickly recapping the definitions that we discussed with you. One was Weitzman's definition, which stressed the application of psychological knowledge. Let me read it out to you again. Forensic psychology is reflected by any application of psychological knowledge or methods to a task faced by the legal system. So body simple सी functional सी definition है. Then Bartle and Bartle's definition, which first, there is an elaboration of that definition. Forensic psychology is both the research endeavor that examines aspects of human behavior directly related to the legal process, यानी तहकीकी component, production of knowledge component, research component, and B, the professional practice of psychology within or in consultation with the legal system that encompasses both criminal and civil law and the numerous areas where they interact. So what they're saying here is कि एक component जो है वो research है या production of knowledge है, दूसरा component जो है वो application of that psychological knowledge to the legal system, जिसमें criminal law भी है और civil law भी है, और इसको उन्होंने sum up किया है in a definition, and even a briefer definition. Forensic psychology refers broadly to the production and application of psychological knowledge to the civil and criminal justice systems. Breadth of forensic psychology की हमने बात की थी, उसमें कुछ examples हमने दी थी, child custody की, competency evaluations की, expert witness होने की, treatment of chronic offenders की, और advising legislators on public policy की. Historical background में हमने आपको बताया था कि जनाब 2001 में American Psychological Association created a separate division, and we also share with you the qualification required to become a forensic psychologist and what is the preferred. So that was quickly an overview of what we discussed. We are still in the introductory phase, and what we're going to do is try and give you some examples. तो आज के लेक्चर में हम इस तरह से करेंगे कि हम कुछ मिसालें ले लेंगे, और मिसालें इस तरह की लेंगे कि आपको इलस्ट्रेट कर सकें कि क्या ब्रेड्थ है इस फील्ड की, क्या स्कोप है, किस किस्म की चीज़ें होती हैं. Now, let me give you an example. आप में से हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो डिटेक्टिव माइंडेड हों और वो इस चीज़ को एंजॉय करते हों. So they might think, it's a good example to work on. Some others may be put off by it and say कि यार ये क्या कत्ल और गारत की बात है. But the problem is, if you have opted for the forensic psychology course, you will be dealing with very serious material. इसके लिए हमारे एक ट्रेनर होते थे फोरेंसिक साइकोलॉजी के, वो कहते थे इफ यू डोंट लाइक द हीट गेट आउट ऑफ द किचन. ठीक है ना जी. तो अगर आपको ये कत्ल, रेप, चाइल्ड मोलेस्टेशन, अब्यूज, टॉर्चर, इस तरह की बातें पसंद नहीं है, तो प्लीज फोरेंसिक साइकोलॉजी इज नॉट द कोर्स फॉर यू. ठीक है ना. फोरेंसिक साइकोलॉजी का कोर्स उसे ही पढ़ना चाहिए जिसे लीगल सिस्टम में इंटरेस्ट हो, जिसे क्राइम को समझने में इंटरेस्ट हो और क्रिमिनल्स के साथ काम करने का शौक हो. Now, जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट यूजुअली, लेकिन जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं फिर वो भरपूर तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं, और उससे उन्हें, जैसे मुझे लोग पूछते थे कि डू यू एंजॉय योर वर्क, तो मैं उन्हें एक बहुत सिंपल सा जवाब देता था, आई फाइंड इट फुलफिलिंग, आई डोंट फाइंड इट एंजॉयबल. क्या मतलब है इसका? मैं इस काम को इंजॉय नहीं करता. जैसे होता है ना कि एक आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग कर रहा है, तो किसी पूछते हैं जी डू यू एंजॉय योर वर्क, कहता है यस आई लव इट. मैं ब्रश पकड़ता हूँ, कैनवस मेरे सामने होता है, उस पर मैं ब्रश से स्ट्रोक्स लगाता हूँ, काम करता हूँ, वाह जी वाह, इससे बेहतर जिंदगी कोई नहीं है, उस आर्ट के मुझे पैसे मिल जाते हैं, बात खत्म, अल्लाह अल्लाह खैर साला. बट
when it comes to forensic psychologist, you go and you talk to a person who has raped 5 women, right? Some of them as young as, 19 or 20. And you are sitting with them trying to help them become better. It is not enjoyable. It is not enjoyable because what they're telling you is about their life stories of being mistreated, of being beaten, of being abused, of being in prison, being raped in the prison, being tortured, you name it. They've been through it. ठीक है ना? तो आप उस सारी स्टोरी के साथ गुजर रहे होते हैं, उस सारी स्टोरी को सुन रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं, उसके साथ साथ चल रहे हो. And then you have to help that person become a better person. So yes, it is not enjoyable, but it is fulfilling, it is rewarding. इससे एक सुकून की फीलिंग मिलती है बाद में कि हाँ मैंने कोई अच्छा काम किया. So if you're looking for enjoyment, again, please don't come into forensic psychology. If you're looking for fulfillment, if you're looking for, जैसे वो बाज़-औक़ात होता है ना कि कोई डरावनी फिल्म लगी होती है तो बाहर वो इश्तिहार के साथ लिख देते हैं कमज़ोर दिल हजरात ना आए या उनके लिए ये चीज़ नहीं है. तो कमज़ोर दिल हजरात जो हैं वो उनके लिए फोरेंसिक साइकोलॉजी नहीं है. ठीक है ना? सेंसिटिव होना कोई बुरी बात नहीं है इसकी. यू कैन बी सेंसिटिव. You should be sensitive to be a psychologist. हसास हो कोई बुरी बात. लेकिन if you are put off by talk of murder and rape, other crimes, I would recommend that you stay away from it. Anyway, let me give you now an example. A man is found dead in his bedroom. ठीक है? एक साहब जो हैं उन्हें मुर्दा पाया गया. His family had gone out of town. उनकी फैमिली जो है वो कुछ दिन से गई हुई थी और वो पीछे रह रहे थे क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली दफ्तर से और whatever reason. We don't know. It was his neighbors who found the body. उन्होंने देखा कि जनाब हफ्ता हो गया है, फैमिली बाहर गई हुई है, वो साहब जो हैं वो ना घर से बाहर निकले हैं ना कुछ पता चला है. तो कुछ दिन बाद उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया. जब किसी ने खोला नहीं तो दरवाज़ा तोड़ा, अंदर दाखिल हुए तो उन्हें मुर्दा पाया गया. Then they called the police. The police found a bullet, ठीक है, a bullet wound in his chest. पुलिस को क्या मिला कि एक बुलेट वुंड मिला जो कि उनकी छाती में थी, यानी छाती में गोली लगी. Now, was it a suicide or a murder? अब सुसाइड नोट तो कोई नहीं था, वहाँ कोई खत नहीं था जिसमें लिखा हो कि जी मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर. अच्छा, अब मेडिकल एग्जामिनर जो है उसने बॉडी को देखा है, उसने बुलेट वुंड जो है वो किसी भी तरह से हो सकता. अब मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूँ कि हाउ कैन द मेडिकल एग्जामिनर डिसाइड कि जनाब ये सुसाइड थी, खुदकुशी थी या किसी ने कत्ल किया. ठीक है. अच्छा, अब पुलिस तफ्तीश करती है. अब पुलिस की तफ्तीश आपको पता है कि अब पुलिस किससे पूछेगी, जो भी जिससे भी पुलिस कुछ पूछेगी वो पहले ही डरा होगा कि जनाब मुझे तो ये सस्पेक्ट बना लेंगे, मुलजिम बना लेंगे. अच्छा, अब पुलिस के तफ्तीश का अपना अंदाज है. अगर उन्हें किसी पे शक हो गया तो हो सकता है कि वो थाने में ले जाए और थाने के ख्याल से भी बंदे को दिल का दौरा वहीं पे पड़ जाए कि जनाब ये तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या होने लगा. And we don't know whether the person they're taking is actually somebody who had killed him. और हो सकता है suicide. So psychologist can help by doing a psychological autopsy. अच्छा, अब psychological autopsy की depth में हम बाद में जाएंगे, लेकिन कैसे? What would the psychologist do? Psychologist would go and talk to the parents, to the family, to the wife. ठीक है? If there are older children, psychologists will talk to them. Psychologists will try and assess the family and see if there were serious problems that could have led the person to commit suicide. Psychologists can recreate the situation of the family prior to the death and make a judgment. Financial situations कैसी थी, family में relationship कैसे थे, हमसायों के interviews non-threatening manner में psychologists बड़े आराम से कर सकते हैं. They can examine all sorts of documents that are available in the family and also look at the person's job situation, क्या जॉब थी या नहीं थी, अगर थी तनख्वाह कितनी थी, बॉस के साथ रिलेशनशिप कैसे थे, क्या काम था, वगैरह वगैरह. And psychologists can then prepare a report
that would suggest to the medical examiner whether the person was likely to have committed suicide or does it smell of murder. Now, this is a very good example, in my opinion, of very good forensic psychological work. अच्छा, अब ये जो forensic psychological work है, this is almost the work of a detective. ठीक है ना? ये काम पुलिस करती है, लेकिन not to that level of sophistication. और इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग जो है वो भी, I don't think they have enough training to do this kind of work. And that is why I think that police detectives need to be supported by psychologists who are properly trained and qualified. So this is an example of how psychologists can participate in police investigation, right? Okay. So to sum up this particular example, let's see. Psychologists can help interview the family. Psychologists can help interview the family, find out what was wrong. So not just in a murder case, they can do so in all sorts of cases, right? They can assess the personality type from collected information. अब ये एक specialized knowledge है ना psychology, like any other. हमें लगता है कई दफा psychology की बात हो रही हो तो बहुत ही common sense बातें हो रही. So you know that people are talking about everyday things, but no, that's not as simple. Personality types जो हैं, different personality types जो हैं, they are more likely to commit suicide than others. In certain kinds of personality disorders, suicide is more likely. In another kind of personality disorder, you're more likely to commit a crime than be victim of it. So psychologists जो हैं, they can help decide what sort of personality the victim had or the person had. Then psychologists are also qualified to analyze medical records. तो अगर medical records हैं, मसलन एक बंदा बार बार जो है वो stress के लिए, परेशानी के लिए, palpitations के लिए, stomach upset के लिए डॉक्टर के पास जाता रहा है, तो we know that they might have a problem with anxiety. They might. And further investigation of the medical processes in the person's body may allow the psychologist to come to a conclusion, come to a forensic conclusion about what may have gone wrong. The psychologist can create a profile of the individual who's deceased. So अगर कोई शख्स जिनका इंतकाल हो गया और हमें नहीं पता कि उन्होंने मर्डर या सुसाइड की है, psychologists can create a profile from all the different available information जो कि उन्होंने different sources से इकट्ठी की है, and perform a psychological autopsy. A psychological autopsy is like a medical autopsy. It just tries to recreate the scenario prior to the death and determine whether it was a likely suicide or a likely murder. तो ये है एक example. Now let's take another example. And this is again an example of child custody. Child custody is a very, very common problem in the West. अमेरिका में divorce rate 50%. 1 of every 2 marriages ends in divorce. ब्रिटेन में थोड़ा सा बेहतर है, 1 out of every 3 marriages ends up in divorce. पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल नहीं है, लेकिन fact of the matter is divorces are increasing as our economic, social, political, cultural situation is changing, becoming more and more modernized. We are being affected, and as a result divorces are increasing. मैं अपने context में देखता हूँ, any family I know, I'm talking about extended families, larger families, there are several divorces in each one. तो पहले वाला वो ज़माना नहीं रहा कि marriage used to be for keeps, forever. तो इस केस में जो एक common problem है वो child custody की है, और आम तौर पे
कोर्ट कचहरी तक बात पहुंचना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाज़ केसेस में पहुंच भी जाती है। तो इन किस्म के केसेस में बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल हेल्प जो है वो अवेलेबल हो टू द कोर्ट। अच्छा, अब वो जो साइकोलॉजिकल हेल्प है, इट इज़ नॉट जस्ट कंसर्न विद हु शुड हैव द चाइल्ड, हु शुड लुक आफ्टर द चाइल्ड, सिर्फ इससे कंसर्न नहीं होनी, बल्कि इट शुड ऑल्सो बी इन हाउ टू देन हेल्प द चाइल्ड एडजस्ट to the new situation post divorce. And so both of these can be looked after by a properly trained psychologist. So a child custody case example, a couple with a 10-year-old daughter goes through divorce. ठीक है, एक couple है, उनकी एक 10 साल की बेटी है, and they go through a divorce. Father alleges the mother is unfit to look after the child due to mental illness. So he claims that the wife is mentally ill and she is unfit to look after the child. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि आम तौर पे अगर एक 10 साल की बच्ची है तो कोर्ट ये प्रेफर करेगा कि बच्ची माँ के साथ रहे. That seems to be a bias and it's a good bias, it's a natural bias. हाँ, बड़े बच्चे हों तो उनको कोर्ट जो है फेवर करता है उन केसेस में फादर को, लेकिन अगर छोटे बच्चे हों तो कोर्ट्स टेंड टू फेवर द मदर, और होना भी ऐसे ही चाहिए. बट इफ द मदर हैज मेंटल इलनेस व्हिच द फादर इज क्लेमिंग शी हैज, देन ऑफ कोर्स द चाइल्ड शुड नॉट स्टे विद द मदर बिकॉज इट वुड नॉट बी गुड फॉर द चाइल्ड. ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट प्रिंसिपल. But mother claims that she is all right and also claims that the father is abusive and aggressive, that he beat up not only the daughter but also her and does that to the point of serious injury and damage. अब ये बहुत सीरियस एलिगेशन, दोनों बहुत सीरियस क्लेम्स हैं. फादर का क्लेम भी बहुत सीरियस है, मदर का क्लेम भी बहुत सीरियस. How can the court decide one way or another? It's a very difficult thing. So psychologist can come in, psychologist will come and talk to the child. अच्छा, अब होता क्या है, फर्ज करें कि जिस वक्त आप इंटरव्यू करने गए हैं बच्चा उस वक्त माँ के साथ है, तो लड़की जो है वो अपनी माँ के साथ रह रही है और माँ ने उसे सिखाया हुआ कि खबरदार जो तुमने मेरे खिलाफ कोई बात की वरना तुम्हें पकड़ के बाप के हवाले कर दिया जाएगा. और माँ चूंकि उस वक्त तलाक के प्रोसेस से गुजरी हुई है, वो बाप के सख्त खिलाफ है और उसकी शक्ल तक देखना उसे गवारा नहीं है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही है और बच्ची को भी वो उसके खिलाफ भड़का रही. नाउ दिस इज द सिचुएशन इन विच द साइकोलॉजिस्ट गोज टू असेस द फैमिली. अच्छा, अब बच्चे से कैसे सही इंफॉर्मेशन पता चले कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है? एंड देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स. आपने साइकोलॉजी कि कुछ कोर्सेज तो लिए होंगे, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि यू वुड बी एबल टू गैस. बट इवन इफ यू नो नॉट एबल टू गैस, फोरेंसिक साइकोलॉजी अलाउज यू टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश स्टार्ट, गिव्स यू अ फ्रेश स्टार्ट एंड अलाउज यू टू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम अ न्यू परस्पेक्टिव. तो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स यू कैन यूज फ्रॉम साइकोलॉजिकल असेसमेंट which will help you get to the truth. अब मैंने एक केस में इसी तरह, the child was living with the mother, यहाँ पे ये क्लेम नहीं हो रहा था कि मदर अनफिट है. The father was only asking कि जनाब मुझे बच्ची से मिलने दिया जाए. The mother was claiming कि जी फादर जो है वो ब्रिटेन में पला बढ़ा है, इंग्लैंड की उसकी वैल्यूज़ हैं, तो वो बच्ची के साथ उसका मिलना जुलना ठीक नहीं है. And when I assessed the child, the first thing I did was I asked her to make a drawing. So after getting, introducing myself, talking to her politely, build rapport, I asked her to make a drawing. And in that drawing, I said, if you were a rose bush, draw yourself as if you were a rose bush. यानी आप अगर
एक गुलाब का पौधा बनाए, तो उन्होंने एक गुलाब का पौधा बनाया बच्ची ने, तो मैंने कहा ये आप हैं, ठीक है, अब अपनी फैमिली को ड्रॉ कर। तो शी ड्रू द मदर ऑन वन साइड, शी ड्रू अ ट्री ऑन वन साइड एंड शी सेड कि ये मेरी अम्मी, एंड देन शी ड्रू अनदर ट्री ऑन द अदर साइड एंड शी सेड कि ये मेरे अब्बू। एंड आई आस्क्ड हर बिकॉज शी एट दैट टाइम हैड अ स्टेप फादर, आई सेड ये आपके कौन से वाले अब्बू? शी सेड ये मेरे असली वाले अब्बू। And then she drew her stepsisters as 3 little plants. उन्होंने कहा ये मेरी छोटी बहनें, और वो छोटी बहनें जो थी they were quite close to the rose plant which was herself. और जब ये सारा ड्रॉ कर लिया तो मैंने कहा कि अच्छा आपके स्टेप फादर के, कहती कागज पे जगह नहीं बची है मेरे पास. So this is just one example. I'm not saying that a psychologist bases all of their conclusions, all of their decisions on this kind of information, on this kind of test. लेकिन एक चीज क्लियर हुई कि कागज पे उस बच्ची के पास अपने स्टेप फादर के लिए कोई जगह नहीं. मेरे हिसाब से तो वो कहीं ना कहीं बना सकती थी, कुछ ना कुछ कर सकती थी, लेकिन उस बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से there was something that was bothering her about the stepfather, right? She had not, even though she was forced by her mother to call her stepfather daddy, she had not really accepted him. तो उस केस में आगे क्या हुआ वगैरह, that is not, that pertinent to this particular example that I'm giving you. But I'm just telling you how several techniques are available to psychologists to find the truth. ठीक है ना, उसे आपको एक इंडिकेशन तो मिल जाती है ना, जब बच्ची कहती है कि जी ये बाप है, ये माँ है, ये बहनें हैं, आप पूछते हैं कि अच्छा तो वो जिनको आप डैडी कह रही हैं वो, कि नहीं जी नहीं, वो कागज पे जगह ही नहीं बची. So it allows you then to probe further what is wrong, what is not proper in the child's life. So in the examples that I was giving you, coming back to that, court asks psychologist for an assessment of the parents and the child and advise the court as to what should be done. So how can the psychologist help in this regard? The psychologist can help by assessing the child on a number of factors. The child looking happy. ठीक है, वो जाहिर है कि डिवोर्स हो रही है तो वो हैप्पी तो नहीं है, खुश तो कोई बच्चा भी नहीं होगा. But is the child reasonably happy in the mother's home? Is she being subjected to unfair treatment? Is the workload being shifted to the child from the mother because of the divorce? Are there financial implications? Is the mother able to support the child? And how does she plan to support the child? Is there a stepfather now in the equation, or somebody else in the equation which could have impact on the child's life? A lot of these factors have to be understood. और चूंकि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ जानता है, वो ये बहुत कुछ जानता है कि बच्चे की ज़हनी नश्व नुमा पे किन अनासर का जो है रद्द अमल हो सकता है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड आर दे बीइंग प्रोवाइडेड इन दैट होम. ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को असेस करने का तरीका आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ये भी पता है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो होने चाहिए एक अच्छे घर में, एंड दैट वे बोथ पेरेंट्स आर असेस्ड. द फादर्स होम इज असेस्ड, द मदर्स होम इज असेस्ड, अदर पीपल इन द होम्स आर असेस्ड टू. मसलन कुछ केसेस में होता है कि जी फादर इज सेइंग कि जी उन्होंने दूसरी शादी वगैरह तो नहीं की, लेकिन वो ये कह देंगे कि जी मेरी वालिदा जो है वो उस बच्ची का ख्याल रखे. तो यू हैव टू देन, द कोर्ट इंसिस्ट दैट यू आल्सो टॉक टू द ग्रैंड पेरेंट्स इफ दे आर गोइंग टू बी द मेन केयरर्स ऑफ द चाइल्ड. एंड सो यू हैव टू नो देन अ लॉट अबाउट नॉट जस्ट द कल्चरल सेटिंग बट ऑल्सो अबाउट old people, and also about the psychology of aging and their child rearing practices. So after that, psychologists can come up to some sort of conclusion. Psychologists can help decide
if the mother is actually suffering from mental illness. The psychologist can help decide if the father is actually abusive and aggressive. The psychologist can also help decide whether the child is better placed in the mother's house or the father's house. But there's another thing to understand here, कि जो एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर होता है, वो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ वही परफॉर्म नहीं करेगा वहां पे, वो वहां पे बहुत सारी डिफरेंट और टेक्निक्स भी यूज करेगा. क्यों? उसकी वजह है, मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल क्वेश्चनियर्स are based on questions that the person themselves answer. मसलन उसे पूछता हूँ, आपके घर में खाना 3 वक्त पकता है? तो अगर बाप जो है वो चाहता है कि बच्चा उसके पास रहे, तो उसका जवाब हाँ ही होगा. और यहाँ पे इस बात का तयन करना कि झूठ क्या है और सच क्या है बड़ा मुश्किल है. सो साइकोलॉजिस्ट हैज टू डिसाइड all of these things that the court has asked them to assess, knowing full well that both parents will try and fake good. They will try and appear good in the tests. ठीक है? तो यहाँ पे फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिनकी हम आगे चल के बात करेंगे, बहुत बहुत अहम हो जाती हैं और वो साइकोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा एसेट बन जाती है. सो and these are techniques that an ordinary person cannot, a lay person cannot and is not qualified to administer. ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक किताब में पढ़े हो कि हाँ जी मैं इस फलां टेस्ट को एडमिनिस्टर करूंगा. इन टेस्ट को करने की बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, और न सिर्फ टेस्ट को करने की बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए. You should be a properly trained clinical psychologist. You should be a properly trained clinical psychologist who is authorized to administer psychological tests. Now, as I said, it's uncomfortable. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि चाइल्ड कस्टडी की बात करना जो है वो भी अनकंफर्टेबल है, डिफिकल्ट है. एक घर टूट जाता है और उसमें से फिर बच्चे को भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है. It's a difficult thing, but something we have to do. Then there is another interesting example that I bring forth before you, just to give you a flavor of the field. A person confesses to having committed a murder. ठीक है? एक शख्स कहता है कि जनाब उसने एक बाले जुर्म कर लिया कि मैंने फलां शख्स को मार दिया. अब ट्रेडिशनली तो ये होता था कि जनाब कोर्ट के लिए, अदालत के लिए काफी है कि किसी ने इकबाल जुर्म कर लिया. लेकिन जज साहब जो हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि पूरी दुनिया में पुलिस जो है कन्फेशंस निकलवा लेती. सिर्फ पाकिस्तान की पुलिस जो है वो इसमें अनोखी नहीं है. पुलिस कन्फेशंस का जो एक किस्सा है वो काफी पुराना चल रहा है. सो द कोर्ट सेज, इनवाइट्स अ साइकोलॉजिस्ट विद फोरेंसिक स्पेशलाइजेशन एंड सेज कि जनाब ये बताइए कि ये कन्फेशन सही लग रही है आपको या नहीं. हाउ कैन द साइकोलॉजिस्ट हेल्प है? अब साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ वो कागज का टुकड़ा अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना. Psychologist can, of course, make certain judgments just by reading the confession. But the psychologist can then interview the person confessing. Psychologist can also interview and observe the police interaction with the suspect. ठीक है? मसलन पुलिस उसे बात कैसे कर रही है, उसे किन कंडीशंस में रखा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट को मिलने कितनी आसानी से दिया जा रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हो रहे हैं, या उसकी राह में कोई मुश्किलात तो नहीं खड़ी की जा रही कि वो मिल ही ना सके. अगर मिलता है तो उसे प्राइवेसी दी जा रही है या नहीं दी जा रही, या कुछ लोग सुन रहे हैं उस गुफ्तगू को किसी बहाने. बाद वक़्त ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट को कहा गया है कि जी आप मुलाकात करें, कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जी अलहदा मिलें, लेकिन एक गार्ड वहां पे खड़ा हो गया कि जनाब आपकी हिफाजत के लिए, देखे ना ये तो कातिल शख्स, तो आपकी हिफाजत के लिए मेरा यहाँ होना मौजूद है, जरूरी है. तो अब उस केस में ये है कि अगर उसी शख्स ने फर्ज करें टॉर्चर किया है कन्फेशन निकलवाने के लिए मुलजिम से, और वो सामने खड़ा है और उसे घूर भी रहा है कि अच्छा बच्चे तू बोलते सही, कह तो नहीं रहा है लेकिन उसकी आंखों से मुलजिम को पता है,
तो वो साइकोलॉजिस्ट को कुछ नहीं बता पाए, बट साइकोलॉजिस्ट काफी कुछ बता पाएगा, ठीक है ना. इवन इफ द सस्पेक्ट डजंट से एनीथिंग, द साइकोलॉजिस्ट विल बी एबल टू टेल द कोर्ट दैट I was asked to assess this individual alone, but the police did not, despite my insistence, permit that to happen. And therefore, I was not allowed to, I already suspect there is something wrong about this confession. Okay? So even when a psychologist is being interrupted in their work by the police, they can still make a recommendation to the court. ये नहीं होगा कि वो confession जो है वो out of court फेंक दी जाएगी, लेकिन ये जरूर होगा कि police will be forced to allow individually one-to-one time with the suspect while making enough security arrangements, safety arrangements for the psychologist. And also, what's important is once suspicion has been raised around the confession, the police will be unlikely to torture the prisoner further. So, psychologists can help in a number of aspects to understand whether or not a confession is genuine. अच्छा, अब इंटरव्यू के दौरान अगर तो confession genuine है और उसमें बंदे में उसके लिए एहसास जुर्म ज़्यादा है या उसे एहसास गुनाह है या वो बाकायदा रिमोर्स शो कर रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट नोज व्हेन इट इज जेन्युइन एंड व्हेन इट इज नॉट, एंड देयर आर वेज ऑफ टेलिंग जो कि साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग में होता है. ये रिमोर्स जेन्युइन है या नहीं. जिस बंदे को डरा धमका के कन्फेशन ली जा रही है, वो जब इंटरव्यू करेगा साइकोलॉजिस्ट, तो साइकोलॉजिस्ट पे ये हकीकत यहाँ हो जाएगी कि was the confession obtained under duress, under torture, under pressure, or was it a genuine confession? So psychologists can help. अब let's talk about police psychologists. ये तो था ना कि एक independent professional है, उसे बुलाया गया है कि जनाब ये decide. What about police psychologists? वो psychologists जो पुलिस के लिए काम कर रहे हैं, how can they help? How can they be helpful to the point के कुछ improve कर सके? An example, the IG police wants help in recruiting honest and non-abusive police officers. How can psychologists help in this? So, psychologists can help with recruitment. How? Again, psychologists की training में एक बुनियादी चीज़ है और वो है testing. हमने तरह तरह के टेस्ट डेवलप किए हैं. साइकोलॉजिस्ट ने बहुत हजारों किस्म के टेस्ट हैं इस वक्त, और उनमें बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो रिक्रूटमेंट के लिए हैं, सिलेक्शन के लिए. कैसे? अब होता क्या है, प्रोसेस क्या है, मुख्तसरन बयान करूंगा. वी विल गो इनटू सम डेप्थ व्हेन वी डिस्कसिंग पुलिस एस्पेक्ट ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी, बट दिस टाइम जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर, एन एग्जांपल ऑफ दिस, व्हाट विल हैपन इज वी विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, आप आईजी से बात करते हैं, आपको किस किस्म का ऑफिसर चाहिए? वो कहते हैं कि मुझे ईमानदार चाहिए. ईमानदार के अलावा क्या क्वालिटी? ही शुड बी वेल एजुकेटेड, ही शुड हैव अ पर्सनालिटी दैट कैन फील द अदर पर्सन्स पेन. लेकिन ऐसा ना हो कि कोई आगे खून देखे तो उसे उल्टियां करना शुरू करे. ओके, सो यू वांट अ सेंसिटिव पर्सन बट नॉट अ वीक पर्सन, नॉट एन ओवर सेंसिटिव पर्सन. ठीक है, और क्या चाहते हैं? लेकिन हम ऐसा भी नहीं चाहते कि जिस पे असर ही ना हो किसी चीज का. ओके, सो यू वांट अ पर्सन हु इज काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड एज वेल. ठीक है, अच्छा, और क्या चाहते हैं? जी, जिसकी पब्लिक डीलिंग अच्छी हो, उसे लोगों से काम करना पसंद हो. नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पुलिस डीलिंग. क्यों? आपके पास, आप जब किसी थाने में जाते क्यों नहीं जाते? you're afraid. ठीक है ना? So if the police's behavior is nice to you, what will happen? You will not be afraid. तो वो जो आपको एक प्रोफाइल दे दिया, अब आप क्या करते हैं कि उस प्रोफाइल के मुताबिक या तो टेस्ट जो एग्जिस्टिंग है उनमें से सिलेक्ट करते हैं या फिर अपने टेस्ट डेवलप करते हैं. बोथ थिंग्स आर ओके.
So usually you select, because as I said, lots of tests are already in the market. So you select the test that should be applied in this particular situation, and you give these tests to all the applicants. ठीक है? और इससे पहले एक और चीज भी है, वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया. मसलन अगर आप कहते हैं कि जी कोई भी 8वीं पास जो है वो शामिल हो सकता है, हम पूछेंगे भाई आप ये क्यों कर रहे हैं. अगर आप चाहते हैं कि ज़रा रीजनेबली एजुकेटेड हो बंदा, जो है रीजनेबली डीलिंग उसे आनी चाहिए, तो आप ग्रेजुएट की शर्त क्यों नहीं लगाते. जब आप अपनी और जगहों पे लाइफ में एजुकेशन की कैद लगा रहे हैं, तो व्हाई नॉट पुट द लिमिट फॉर पुलिस at graduate level. That's just an example. I'm not making any recommendation right here. I'm just telling you the kind of input a psychologist can provide. ठीक है ना? So psychologist can make a recommendation कि जी पहले तो आप अपना selection criteria जो है उसको modify करें. Let's say ये उनकी मर्जी है, वो इसे change करते हैं या नहीं करते. But then जो उन्होंने आपको task दिया है वही testing का. तो अब you develop tests and you say कि जी फलां शख्स जो है उन्होंने फलां टेस्ट में ऐसा परफॉर्म किया है जिसकी बुनियाद पे साइकोलॉजिस्ट ये रिकमेंड कर सकता है कि इनको ले लिया जाए. क्यों? कि उस प्रोफाइल पे पूरे उतरते हैं जो कि आईजी साहब ने हमें कहा है कि भाई हमें इस किस्म के पुलिस ऑफिसर चाहिए. और फलां लोग फलां टेस्ट पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और हमें लगता है कि वो उस मकसद को हासिल करने में हमारी मदद नहीं कर सकेंगे जिसका आईजी साहब ने हमसे जिक्र किया. सो दैट प्रोफाइल इज अनसूटेड फॉर पुलिस वर्क. ठीक है. अच्छा, अब लेकिन जो लोग आ गए हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी साइकोलॉजिस्ट कैन हैव एन इनपुट एंड से कि जी इन्हें ये और ये चीजें इस तरह से सिखाई जाए. ठीक है ना. व्हाट इज द कंटेंट एंड व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ डिलीवरी ऑफ दैट कंटेंट. तो ट्रेनिंग में भी साइकोलॉजिस्ट कैन रिमेन इन्वॉल्व. और कुछ जो लोगों के गलत एटीट्यूड्स होंगे उन ट्रेनीज में, उनको ठीक करने में भी जो पुलिस साइकोलॉजिस्ट हैं वो हेल्पफुल हो सकते. एंड देन ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट. ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट जो है, काउंसलिंग जो है वो शुरू में भी दी जा सकती है एडजस्टमेंट के लिए, और जो वर्किंग पुलिस साइकोलॉजिस्ट हैं उनको भी दी जा सकती है. सो दैट कैन हेल्प एज वेल. दैट कैन रिड्यूस police stress, that can reduce the problem of misdealing and mishandling by police. तो ये चीजें हैं जिनमें we can be very, very useful. Psychologists can be extremely helpful at the different stages of police, but this we will study in some depth as we come to our discussion of police psychology. Then another example is that of eyewitness testimony. The prosecution has found an eyewitness to a murder that happened at night. रात के वक्त एक मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, और एक शख्स कहता है कि जनाब मैंने अपनी आंखों से देखा. अब जो डिफेंस है उसने कहा जनाब बात यह है कि उन्हें ये लगा कि रात का वक्त है, वहां पे रोशनी कोई नहीं थी, बंदा जो था वो उस जगह से बहुत दूर खड़ा था, साइकोलॉजिस्ट क्या किसी तरह उन्हें हेल्प कर सकता. नाउ यहाँ पे जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि साइकोलॉजिस्ट का रोल यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट है. गो कि डिफेंस लॉयर ने उन्हें अप्रोच किया और डिफेंस लॉयर जो है वो उनकी फीस भी देगा साइकोलॉजिस्ट की ये काम करने की. साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी है कि वो कोर्ट के लिए काम करे, नॉट फॉर द लॉयर, नॉट फॉर द सस्पेक्ट. ये हमारी कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हिस्सा. एंड व्हेन वी टीच फोरेंसिक साइकोलॉजी we make sure that this is clear. आपको पैसे वकील सफाई ने अरेंज करके दिए हैं, वो पैसे सस्पेक्ट से आ रहे हैं, फीस जो है आपकी. लेकिन आपने जो काम किया है एज ए साइकोलॉजिस्ट वो ये किया है कि आपने कोर्ट को बताना है कि जनाब ये सूरत हाल थी, बंदा इतने फुट दूर खड़ा था, बंदा ये हो नहीं सकता कि इस अंधेरे में जो, और इस वाक़े को अगर 3 साल हो चुके हैं, तो reliability or dependability of the eyewitness in the absence of any other evidence. You can tell the court
whether or not, in your professional opinion. डिसीजन जज का काम है, बाकी सारे एविडेंस को कंसिडर करना जज का काम है. आपने सिर्फ अपनी रिपोर्ट देनी है कि जी ये सही हो सकता है या इसके गलत होने के चांसेस हैं. क्योंकि आपको पता है कि हमारे लॉ में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाली बात है, और प्रूवन गिल्टी यानी कि शक है, ठीक है ना. तो अगर शक की गुंजाइश निकलती है तो साइकोलॉजिस्ट हैज टू से इट, और नहीं निकलती तो तब भी द साइकोलॉजिस्ट मस्ट प्रोवाइड सपोर्ट व्हेन दे से कि जी ऐसा है. तो बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द साइकोलॉजिस्ट असिस्ट द कोर्ट, नॉट द लॉयर and not the suspect, even if they are being paid by the suspect or the defense lawyer. ठीक है. So I think that is another important thing to realize and understand. फिर victim support. अब victim support ऐसा एरिया है कि जिसमें बहुत understandable है कि जी इसमें होनी चाहिए थी लेकिन support नहीं होती. Let me give you an example. A rape victim continues to suffer from PTSD, जिसे कहते हैं post traumatic stress disorder, which means that the trauma or the painful experience that they suffered a long time ago stays with them and it affects their life. So a rape victim continues to suffer from post traumatic stress disorder after 10 years and has ongoing problems in her marriage. Can a psychologist help? Of course a psychologist can help. साइकोलॉजिस्ट को कपल्स के साथ काम करने में, फैमिलीज के साथ काम करने में एक तो वैसे भी ट्रेनिंग है. फिर जिन लोगों ने डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस बर्दाश्त किए हैं उन एक्सपीरियंस के लिए भी साइकोलॉजिस्ट को एक्सपर्टीज है. तो इफ देयर इज अ रेप विक्टिम, अ साइकोलॉजिस्ट कैन वर्क एंड हेल्प द फैमिली एड्रेस द इश्यूज. हस्बैंड के हो सकता है कुछ इश्यूज हो, एक्सेप्टेंस, और उसकी वजह से ट्रॉमा जो है वो ज्यादा बढ़ गया हो, तो हस्बैंड के साथ काम करना, फैमिली के साथ काम करना जो है, जो कम्युनिटी के साथ बाज़ों का साइकोलॉजिस्ट जो है वो काम कर सकते इन केसेस में, टू रेज अवेयरनेस कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सर्वाइव सच ट्रॉमा एंड देन टू रिज्यूम अ नॉर्मल नेचुरल लाइफ. तो victim support जिसे हम कहते हैं, a child who has been physically abused, a child who has been sexually abused, a person who's a victim of a dacoity. देखिए अब एक साहब हैं, उनके घर डाका पड़ा और उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया और पिस्तौल निकाल के डाकू ने उनके सर पे रखी हुई थी. इत्तेफाक की बात है कि घर में उन्हें कुछ ज्यादा मिला नहीं, तो डाकू और भी गुस्से में आ रहे थे. तो वो कहते हैं कि जनाब मैंने तो कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया. मैंने कहा शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है. अब वो डाकू जो थे, इत्तेफाक से हुआ ये कि कुछ ज्वेलरी उन्हें मिल गई जो उनकी बेगम की थी. तो उस ज्वेलरी को जो है पाके वो खुश हो गए और उन्होंने जिंदा छोड़ दी. अब आई आस्क यू, इफ यू वर इन दैट सिचुएशन, खुदा ना खास्ता कोई शख्स ऐसी सिचुएशन में आता है तो क्या करता है, उसका इफेक्ट आप पे क्या होता है? बट वन डजंट ऑटोमेटिकली गो टू द साइकोलॉजिस्ट आफ्टरवर्ड्स एंड से प्लीज हेल्प मी. तो ये चीज समझने की जरूरत है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस, एक शख्स के लिए जो जिंदगी और मौत की सिचुएशन से दो चार हो गया है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया है, यू नो एवरीथिंग इज नॉर्मल, नाउ यू आर लीडिंग योर नॉर्मल लाइफ, बट द ट्रॉमा, द पेनफुल मेमोरीज ऑफ that experience remain with you and they affect your performance in different aspects of your life. तो इसको इस सिचुएशन में हेल्प करने के लिए भी forensic psychologists are very important. So we don't just work with criminals, we don't just work with the judges, we don't just work with the lawyers or the police, we also work with the victims of the crime. बाज़ अगर लोग कहते हैं जी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट तो क्रिमिनल की साइड पे हो जाते हैं, उन्हें ही ट्रीट करते रहते हैं, उन्हें ही ठीक करते हैं. नहीं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू द विक्टिम्स एंड देयरफॉर वी वर्क एंड हैव द एक्सपर्टीज फॉर, यू नो, enough expertise, the necessary expertise, the essential expertise for working with victims. And victim support programs usually
rely on psychologists to provide input. So that's another area in Pakistan where victims of crime can be helped. And forensic psychologists can be useful. Thank you very much. Inshallah, I will see you in the next lecture. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum students. Today the Virtual University of Pakistan brings you a new and exciting course called Forensic Psychology. अब आप पूछेंगे Forensic Psychology क्या है? Definition तो मैं थोड़ी देर में आपको दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस कोर्स में बाकी तमाम कोर्सेज की तरह you will have lectures on television, you will have assignments, you will have handouts and you will have exam. तो ये सारा प्रोसेस जो है उसी तरह होगा जैसे बाकी कोर्सेज में होता है. We'll start out with an introduction spanning about 2 lectures and then we will get into the meat of it. ठीक है? तो forensic psychology है क्या? मुझे याद है मैंने जब पहली दफ़ा forensic psychology का नाम सुना as a psychologist तो मेरे ज़हन में आया जैसे वो होता है ना कि किसी शख्स के मरने के बाद उसकी ऑटोप्सी की जाती है, पोस्टमार्टम जिसे कहते हैं. तो मैंने सोचा कि साइकोलॉजिस्ट वाला पोस्टमार्टम में क्या रोल प्ले करेगा, क्योंकि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आमतौर पे पोस्टमार्टम का ही काम करते हैं पाकिस्तान में. लेकिन once I got into the field and I worked for about 7 years in this area, I realized how vast its range of applications was and how deep some of the points, how complex some of the points are. तो इसलिए ये जो फोरेंसिक साइकोलॉजी का एरिया है ये सिर्फ जिसे कहते हैं पोस्टमार्टम या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस तक महदूद नहीं है, बल्कि एक बहुत वास्ट रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है which we will study in the course of this program. अच्छा, लेकिन एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है यहाँ बतानी कि while it is a new and exciting area, it is a new and exciting area in the West as well. यानी अमेरिका में आप ये सोचें कि 2001 में it was recognized as a special area, as a separate area, and a new division of forensic psychology was created in the American Psychological Association. This was year 2001. इसी तरह ब्रिटेन में ग्रेजुअली जो फोरेंसिक साइकोलॉजी का प्रोग्राम है अभी तक it has not been recognized at the doctorate level. People still get a diploma in forensic psychology in Britain.
और फोरेंसिक साइकोलॉजी का ज़्यादातर काम जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं who specialize or maybe develop an interest in this area. And that is my own expertise in this. I'm a clinical psychologist by training and I've done my doctorate in cognitive psychology, and so I was able to apply both of these areas to an understanding of the forensic science. अच्छा, forensic होता क्या है? Forensic के basically माने हैं legal, anything to do with law, यानी हमारे कानून से जो रिलेटेड है. अब आप देखें कि इसकी कितनी इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है कि जो कुछ भी हम ब्रिटेन या अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर एग्जांपल्स हम वहीं से लेंगे, ज़्यादातर इश्यूज हम वहीं से लेंगे, बट वी विल आल्सो ट्राई टू मेक इट एप्लीकेबल टू पाकिस्तान. व्हाई? बिकॉज आवर लीगल सिस्टम इज डिफरेंट, आवर हिस्ट्री इज डिफरेंट, आवर कल्चर इज डिफरेंट. तो फोरेंसिक साइकोलॉजी इस तरह और भी एक्साइटिंग हो जाती है हमारे लिए कि वी हैव टू फाइंड अ वे to apply it in Pakistan and make it relevant to the needs of Pakistan.